from Ministry of Films, and today we shall be talking with Mayur Puri, who's a very acclaimed lyricist who has been nominated for big awards like Filmfare, Star Screen, for not just his lyrics but also his dialogue writing for films like Om Shanti. You- Yes. Hello. So you aren't very visible right now. So, Armeet, can you just comment saying what the issue is? Yes. Hello. Hi. Sir, am I visible? Audible? Yes, yes, I can see you. I can hear you. Can you? Yes, yes, absolutely perfect. Okay. Uh, so before anything, actually, I'm going to be going to talk to ask you about five different songs that you've written. But before that, I have to ask you about just writing lyrics in general, right? Because it is very different from just any other songwriter because you're writing lyrics for a film. वो एक कैरेक्टर के लिए ही है और you have to write for example if I take into consideration a song like Selfie Lele which you've written, when I take that into consideration you have to write from the side of Pawan Kumar Chaturvedi. You have to write Yes. from it being a Salman Khan song, his entry song, एंड ऑल्सो उसके अंदर अपनी फिर पोइट्री जितनी बचती है वो भी डालनी है. सो हाउ इज दैट प्रोसेस कि ये सब कुछ ये सारी चीजों का मिश्रण कैसे होता है? Well, writing a film song is like riding on two, three boats at the same time. Okay, the water is always moving, the wind is always coming, and your feet are in two boats. In fact, more than two boats. You have to take care of the characterization. You have to take care of the film situation. You have to keep telling the story of the film. So, talking about Selfie Le Le, there is a nice line in the Antara where he says, "Ke तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा तू मेरे साथ गर हो रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा तू मेरे साथ गर हो." Now this is happening in राइट. the first 20 minutes of the film, and later on he is going to cross the borders and go करेक्ट. into करेक्ट. Pakistan. जी हाँ. So you have to take care of storytelling also. It's not just the character and the situation, but it's also the story, what's going to happen in the film, what's happened before, what's happening now. So a lot of things. And what is the language of the character, वो ये बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा. Like Selfie also we had a little problem. We couldn't find the Selfie Le Le Re part was the last thing that was written for the song. Before that, हाँ. धातु ना तू ना बजे डंका and all of that had happened, and then ele वहां तक हो चुका था गाना. But Pritam always has this thing that when you come to the hook, there should always be a meaning to the hook. Hook should not be nonsense. There should be something which is important for that hook to happen. So he said, नहीं ये जी. ले ले क्या ले ले. It's not, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ए ले ले पर क्या ले ले. I said नहीं यार, it doesn't हाँ. mean anything. It's like ओए ओए, ओए ओए का क्या मतलब है. So Pritam said नहीं ओए हाँ. ओए का मतलब है कि तिरछी टोपी वाले बाबू बोलने वाले तू याद आने लगा है दिल मेरा गाने लगा है क्या गाने लगा है ओए ओए. Right. So करेक्ट. he said there has to be a launch into going into this thing into the selfie le le re. So then that's why I came up with that के जोगी चलाए कोई जंतर खिलेगा तेरा अंतर तू आजा गुरु मंतर ये ले ले रे. क्या गुरु मंत्र ले ले ए ले ए ले रे. तो वहां तक हो गया हमारा सेट. उसके बाद में लास्ट एक वो जो चल बेटा सेल्फी ले ले रे वहां पे टरा टटा राडा राडा वो नहीं हो रहा था. We were like, it had been 20 days since I'd been writing antaras for this song and mukha and all of that, and that last part was just not becoming catchy, or it did not have that selling point for the song.
And I think we were sitting in the room and somebody just said, "चलो इस बात पे तो selfie ले लेते हैं." ऐसा करके they were about to step out of the studio and I said, "अरे ये तो superb hook है, यही करते हैं, चल बेटा selfie." Everybody started laughing. They said, "नहीं नहीं ये hook नहीं हो सकता." Then they liked it. Then they said, "चलो ठीक है, यही hook रख लेते हैं." Then Kabir sir, the director of the film, Kabir Khan, he had a problem. He said that the whole song, the language of Pawan is correct. You know, when he's talking about आपकी रहे अनुकंपा न डर है न शंका नाचेंगे हम जोर, ये सब उसकी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वो सेल्फी वाला कैरेक्टर नहीं है, तो वो सेल्फी की लैंग्वेज कैसे करेगा? हम लोग को सेल्फी इतना पसंद था, एंड दिस इज माइंड यू बिफोर सेल्फीज बिकेम अ रेज, यू नो, दिस इज बिफोर दैट. सो वी वर लाइक वेरी श्योर, नहीं सेल्फी तो चाहिए ही हमको. And then I finally convinced him somehow, and then we convinced Remo, the choreographer of the song. We said, so he came up with a solution कि ऐसा करते हैं, पहली बार जब सेल्फी का थॉट आता है तभी on screen it will not be Salman Khan saying that, it will be some other character, some other dancer who will come and say चल selfie ले ले रहे, and then after that he can say it. So if you see the picturization of the song, the first time चल बेटा selfie ले ले रहे, it's not mouthed by Salman Khan, it's mouthed by another character, and then he can. So yes, there is, like you said, there is too many things. You have to manage the situation, the storytelling, and of course the characterization, all of that. Right, and that must be tough. Like coming to actually my one of my favorite songs that you've written. It's something that you wrote very early in your lyric writing days, which is "Bhigi Bhigi" from Gangster, which I'm a huge fan of. So the main hook became so famous. Those lines became so famous कि उसी नाम के ऊपर same production house में अलग film आ गई है, and it became a rage, right? Like it wasn't the most promoted song. वो एल्बम के दूसरे गानों को पहले प्रमोट किया गया, लेकिन ये सॉन्ग अभी तक it feels as fresh. How difficult was it to write lyrics like that? ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे फिल्म का मेन गाना या जो टॉप प्रमोशन करने वाले थे वो गाना नहीं मिला, दूसरा कोई गाना मिला और मैंने वो लिखा और फिर वो बहुत बड़ा हिट हो गया. ऐसा होता है. The same story is there for साड़ी के फॉल्सा also. It was not supposed to be the main song of the film. The main song of the film was Gandi Baat. Everybody was gung ho. Everybody was like, अरे गंदी बात सुपर हिट होगा, एक ये साड़ी के फॉल्सा भैया डाल देंगे उसको. You know, like they were never kicked about that song, but that became a big hit. So I don't think, I think audience knows which song should be made a hit and which should not be made a hit. I think that audience completely understands कि किस song के साथ में वो ज़्यादा relate करते हैं. Speaking of Bhigi Bhigi, it was a very interesting song and it was a huge responsibility for me because you know, one day Pritam just called and he said, "You come and it's a very important song I want you to do." I went to his studio and Pritam always late, so he was himself not there in the studio. And Anurag Basu was sitting, who I did not know who he is. मैंने उनको पहले मिला नहीं था मैं. And Anurag Basu was sitting, and Anurag is such a funny person. So as soon as I entered the studio, he looked at me and he said, "अरे तू मयूर है ना?" I said, "हाँ." "आजा आजा, मैं ही डायरेक्टर हूँ, आजा." And then he sat with me. I said, "What is the song that you guys are so excited about?" And they're like, "नहीं नहीं नहीं, प्रीतम को आने दे, दादा दादा बताएंगे, दादा बताएंगे." Then Pritam came, and then Pritam, before he told me anything about the song, he's saying, "This song is an original Bengali song called Prithvi, and it has been composed by Gautam Da, who's a very famous musician over there in Kolkata." And he said that it's a very, very popular. It's not just a popular song; it's a cult song. और लोग उस गाने की बहुत इज्जत करते हैं बंगाल के अंदर. तो अगर ये गाने का लिरिक्स गंदा हुआ तो मैं दोबारा कलकत्ता नहीं जा पाऊंगा. अनुराग और मैं, हम then we can't go to Kolkata. You understand the responsibility. It has to be pressure, so it has to be written very nicely. I said, "Okay, fine. मेरे को क्या फर्क पड़ता है? I take all songs with equal sense of responsibility." But he said that no, this is very important. I said, "Okay." Then he said that, "Do you want to listen to the original song, the Bengali song Prithvi, and do you want me to translate the lyrics of that?" I said, "No. Do not do that at all. मुझे मत बताओ पुराना गाना क्या था, उसका लिरिक्स क्या था, because I don't want to condition my mind, number one. Number two, उस गाने को, that's an independent song, उसकी क्या situation थी, क्या character, I don't care about that." I told Anurag, "You tell me what is happening with your characters. Tell me where the song is coming in the film, because that's more important for me. And I have to be inspired by the situation in the film, the characters in the film, and not by the history and the lineage of the song. I don't care about that." So he said, "Okay." Then he told me about what क्या होता है पिक्चर में, ऐसा है, film is called Gangster, but it's not a gangster का story, it's actually a love story. और वो सारी बातें हुई, discussion हुआ, and then
it was somewhere I felt that it's a story of about a love which is not requited, it's unrequited love, unfulfilled love. Right. तो कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है, ये उस तरह का गाना है, एंड ऑफ कोर्स साहिब साहब इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी, और उनका बहुत फेमस वो है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, तो ऐसा वो लिख चुके हैं पहले. So I was also very inspired by, let's write something about a story that cannot be finished. That sense of longing, that sense of दर्द. हिंदुस्तान में दो ही चीज बिकती है, दर्द बिकता है या डिस्को बिकता है. ये भूषण कुमार ने फराह को बोला था जब हम ओम शांति के गाने कर रहे थे, एंड देन जावेद साहब वाज आस्क्ड टू राइट दर्द डिस्को. सो आई से दर्द तो हमारे पास सबके पास में है ही. दर्द ऐसी चीज है जिसे सब समझते हैं. इट्स नॉट एन एलियन इमोशन फॉर अस, वी ऑल अंडरस्टैंड. सो अनरिक्विटेड लव, अधूरी कहानी, दैट वाज द फर्स्ट आइडिया. And then when I heard the song, it had a very loopish, like a loop-like structure. It had a very loopish and a very long mukhda, very very long mukhda. Da ra re re ra ra ta ra re re ra ra ta ra re re ra ra ta ra re re ra ra ta. It's very long. So immediately I understood that if it has to be, because it's very difficult for the audience, common audience, to remember a song like that. And if I want to make again Gangster, this song was not supposed to be the big song. It was some other song, but they said that this is the nice song, we do it. So I tried to attack the tune with this thing in mind. So भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी. तो आपने एक बार भीगी भीगी याद हो गया तो फिर आपको पता है, फिर रातें हैं, बातें हैं, यादें हैं, आंखों में कैसी नमी. Becomes easier for you to understand, and I don't believe in burdening the audience too much. You should not burden, you should not cloud them with too much of data. ऐसा नहीं, इतना वर्बोस गाना नहीं होना चाहिए कि आपने इतना कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट आप मारे जा रहे लोगों के सर पे. दे कैन एंजॉय द सॉन्ग. देन द सॉन्ग चाहे कितना ही दर्द हो सिचुएशन में, चाहे कोई भी बात हो, बट चाहे कितना ही फिलोसॉफिकल हो, चाहे कितना ही इंटेलेक्चुअल हो, बट द सॉन्ग शुड बी एंजॉयबल एट द सेम टाइम. यू शुड ऑलवेज एंजॉय दिस. हाँ, क्योंकि अगर लोगों को गाना नहीं आया, if people are not able to hum the same song, so it won't connect at the same level, right? Yeah. So that hummability and singability is very important, and I've learned this through through a lot of failed attempts also. कई बार हम लोगों ने बहुत मेहनत करके गाने लिखे और वो गाने नहीं चले, और उसका कारण ये है कि they were very complicated, they were very difficult to understand, and those kind of things. Like I remember there is a song in first ABCD, the ABCD जो part 1 आया था पिक्चर का, उसमें एक गाना था चंदू की गर्लफ्रेंड. बहुत अच्छा गाना है, और उसमें इतने सारे, बट इट वाज लिरिकली टू हेवी. मतलब कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, हर बार एक नया लाइन, हर बार एक नया कॉन्सेप्ट. Probably it makes the audience tired, and they get कि इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हमको आ रहे हैं. Sometimes it should be repeat also. Sometimes you should repeat the words. Sometimes you should repeat the concept so that audience can enjoy it and they can sing it together. वो लोग, उनको पता है तो गा पाएंगे. अगर 10 बार सुन के समझ में आ रहा है तो गाएंगे क्या बेचारे. Correct. Uske the next song I want to get to is actually, so there was the album Singer's King for which you wrote the lyrics. जिसके अंदर से the one which won all the appreciation was तेरी ओर. The one which became the biggest hit was the title track. Both the title tracks, but actually the one I want to talk about is I'm a North Indian, and I don't know, I'm pretty sure you might have an idea, but among Punjabis, Bhutni ke is still the biggest rage, right? But I want to get to understanding the culture so well that insult comedy is a part of our culture. Yes. Right? North Indians ke culture ka always part insult. Yeah. So insult comedy, especially in wedding scenarios and in families, it has always been a part of. जैसे गुजरात में there are particular kind of songs, wedding songs, which are called फटाना. फटाना मतलब they are like दुल्हन के परिवार वाले दूल्हे के परिवार को गालियां देते हैं, और दूल्हे के परिवार वाले दुल्हन के परिवार को गालियां देते हैं. यूपी में तो बाकायदा उसको गाली ही कहा जाता है. वो एक सॉन्ग फॉर्मेट है, फोक सॉन्ग फॉर्मेट है, जिसको बोलते हैं भैया बैठ के गालियां काट लो, गालियां बोलो. राजस्थान में भी होता है, ये हर जगह पे होता है, एंड पंजाब में तो होता ही है. So this was the first song. Don't mind, I'm just trying to put my headphones on. The first song that we attempted was this one, Bhutni ke, and that happened because we said that वैसे भी फिल्म में भी वो पहली situation थी, and we thought it's going to be an easy song, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था. हम लोग बस, मतलब ट्यून तक पूरी तरह से तैयार नहीं थी.
तो प्रीतम ने बोला कि हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट द सॉन्ग, तो ऐसे एक काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं जितने रिश्तेदार होते हैं और सारे रिश्तेदारों को गालियां निकालने वाला एक पैराग्राफ मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वो लिखा कि एक तेरा भाई हाय स्यापा, बड़ा शिदाई हाय स्यापा, एक तेरी बहना हाय स्यापा, बैंगे नैना हाय स्यापा, पीओ पियक्कड़ हाय। तो ऐसे करके एक पूरा फैमिली वालों का लिस्ट बना के एंड वी मेड जी। दैट एंड इट वाज हिलेरियस बिकॉज वो सुन के ही सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि अरे दिस इज डैम फनी, दिस इज डैम फनी। एंड Correct. देन प्रीतम केम अप विद दैट, नचदा सब तो आगे आगे रंट लगा के रहना लगा के उत्ते पाड़े दा सूट बूट नीचे तनु कोड़ी किसने जी। चढ़ाया भूतनी के। सो भूतनी के गाली भी है मगर गाली नहीं भी है, ऐसा कोई इतना प्रॉब्लमेटिक वर्ड हाँ, हाँ, आजकल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है शायद करना, मगर उस वक्त 2007 की 8 की बात है तो इतना मुश्किल नहीं था। हाँ। एंड वी गॉट अवे विद दैट। Yeah, yeah. बट Like to this point, बट हाँ मगर जी sir. मगर इतना उस गाने में व्हाई पीपल लव दैट सॉन्ग इज नॉट बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी दैट इज देयर इन गिविंग गालीज, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे अंतरे के Right. अंदर वो बोलता है कि यू नो तू पट्टा पर जाई पर तू पट्टा हर जाई पर अच्छी है पर जाई, पर अच्छी है तो बैठेंगे इसके डर पे हम डाल के डेरे। सो द जी। होल एंड द सिंप्लिसिटी, ओए टीटो ओए टोनी कोई कैसे टाले होनी, इट जस्ट my whole idea about songwriting is the song should just flow. It should just flow and everybody should just enjoy singing. जी, You know, if you can't make people 100%. sing, then it won't be fun. That's what. Yeah, I stay in a place where there are all North, like all my childhood friends are all North Indians. यहाँ तक कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने बोला हुआ है कि तेरी शादी पे मैं इसी गाने पे नाचने वाला हूँ। And it's that much a part. Like I know that it did not become as popular everywhere, but among North Indians, Hmm. like you understood the culture very well. So how, like, and it's not just about that. I want to get to just understanding the culture of every different place. कि एक lyricist को आप Hmm. लिख रहे हो तो अलग अलग religions के characters होते हैं, अलग Hmm. अलग words होते हैं। तो Hmm. उसके अंदर when you are like to understand all sorts of cultures, how difficult or easy is that? How much of your part, आपकी job का कितना part है? See, firstly, I'm a storyteller. Before a songwriter, before anything, I was a director. I was always directing things in Ahmedabad also when I used to do theater, when I used to do TV serials and stuff like that. मैं हमेशा director हूँ. So I've always been a storyteller. So एक medium का command बहुत जरूरी है. Now, why do I know so many languages and all of that? That's a different story because I'll tell you. So my father is from a Punjabi family. My mother is from Rajasthan and UP. So my mother's father is from UP. My mother's mother is from Rajasthan. So I know UP, I know Rajasthan. I've had relatives all over North India, Delhi, UP, Haryana, Punjab, everywhere. So I've interacted with them. From childhood, I've had South Indian friends. I've had Mallu friends and Tamilian friends from childhood. So I have, and Bombay, I've been coming, even as a child, I've been coming and going. So I know Bombay, yeah, I know. एक तरीके से आई एम लाइक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया, मैं पूरा इंडिया मेरे अंदर है, लाइक आई that's why, and I pick up language and dialogues very fast. That's the dialects I and that's something which is very important as a dialogue writer also. It's very important for me, and as a songwriter it becomes very important. और अगर मान लो इतना सब होने के बाद कोई चीज नहीं भी आती है तो रिसर्च कर लेते, सीख लेते। जैसे मेरा एक गाना है, वो पूरा गाना हरियाणवी में लिखा गया है, यू नो दैट सॉन्ग इज मैं तो तेरी फैन बन गई, दैट सॉन्ग इज देयर फ्रॉम हाँ, तेरे नाल लव हो गया नाम की पिक्चर थी, हाँ, उसमें गाना है। तो हाँ, उसमें जब उन्होंने मुझे फोन किया टिप्स वालों ने, तो बोला कि ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हरियाणा के ताऊ हैं ओमपुरी जी, डॉन है, वो बैठे और एक लड़की आई है और वो उनके लिए गाना गा रही है, तो ऑब्वियसली वो गा। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ये हरियाणवी में लिखना पड़ेगा, तो बोला हाँ अगर हो सके तो मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन मैं ये 3-4 दिन बहुत बिजी हूँ और मैं सैटरडे को गाना लिखूंगा। मंडे ट्यूसडे कोई बात हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है। और 3-4 दिन मैंने क्या किया, रिसर्च किया, हरियाणवी दोस्तों को बात किया, फोन किया, थोड़ा उनसे जानने की कोशिश की, थोड़ा नेट पे रिसर्च किया, थोड़ा ये किया कि क्या डायलेक्ट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डायलेक्ट, क्या आप जिस धरती जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनकी कुछ सच्चाई आपको उस गाने में डालनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। पीपल जी, रिलेट टू द ट्रूथ्स, people relate to the ideas and the lifestyle and the culture, they don't relate just to the words पंजाबी डालने से गाना पंजाबी नहीं होता। You are talking about बसिक किंग also, एक कलर के 13 पत्ते, एक वर्ड पंजाबी नहीं है उस गाने में, क्या पंजाबी है? राइट, एक कलर के 13 राइट, पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग, एस भी हम है, बेस भी हम है और जिगर में है डेयरिंग, क्या पंजाबी? कुछ भी पंजाबी नहीं है, बट द राइट, राइट, एटीट्यूड इज पंजाबी, एटीट्यूड बड़ा हाँ जी, पंजाबी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चरल न्यूएंस एंड द एटीट्यूड। तो ये फैन बन गई वाले गाने के अंदर देयर इज अ
there is a very beautiful line where she says that कोई बिलाई डाल रे काडो डूबी दिल की लुटिया रे। बिलाई जो होती है वो एक तरह का यंत्र होता है जो हरियाणा में गांव में कुएं के अंदर अगर कोई चीज गिर जाती है गलती से, तो उसको वापस खींचने के लिए एक रस्सी में बांध के ऐसा मेटल का चीजें होती है, और वो जब डाल के उसको खींचने के निकाल, वो जो होता है उसको बिलाई बोलते हैं। तो वो बोल रही है कि मेरा दिल डूब रहा है, कोई बिलाई डाल के उसको निकाल लो कुएं में से। यू अंडरस्टैंड? It's about culture. It's Nice. about understanding these small little nuances. You know, it's not just about writing songs कि हाँ एक language का आपने color दे दिया. That's not important. What is important is आप you understand the तर्बियत, you understand the milieu of those people. उनकी feelings क्या है, उस रेस की खूबी क्या है, qualities क्या है, अच्छी क्या है चीजें, वो आप लेके exploit करने की कोशिश करें. That's more important. करेक्ट, लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक पंजाबी गाना है तो सुनिए हीरिए डाल दो, बट व्हेन यू आर पुटिंग इन इवन समथिंग व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली पंजाबी, बट यू आर सेइंग समथिंग लाइक ओ टिटो टोनी, कोई कैसे डाली, इट इज अ पंजाबी एटीट्यूड के एक दूसरे को ऐसे नामों से बुलाते हैं, ये सारे निकनेम्स होते हैं। Correct. So right, that's very interesting. I want to get to a song which you spoke briefly about already, but I want to get to साड़ी के फॉल सा, जिसके अंदर it is other than the main couple of lines, उसके बाद there is, like you said about Biggie Biggie also, there is a lot of repetition in साड़ी के फॉल सा also. Yeah. I heard the song and the lyrics are repeated a lot of times, but it is so catchy. So कभी ऐसे लगता है कि am I not flexing my muscles, writing muscles completely, like क्या कभी ज्यादा डालने का मन करता है? मैं I want to get to that point कि कभी ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा अपने टैलेंट को अंडरसेल तो नहीं कर रहा? See, it depends on the situation and it depends on the requirement. साड़ी के फॉल सा ऐसा गाना है जिसमें जितना कम लिरिकली आप बोझ डालें, because it's a dance song and you see वो गाना सिर्फ मेरे लिखने की वजह से हिट नहीं है, वो उसमें प्रीतम का कमाल का ऑर्केस्ट्रेशन है, दैट वो जो पीस है दैट मेक्स द सॉन्ग। और शाहिद क्या नाचा है गाने में, मतलब आई कांट टेल यू, लाइक आई वाज सीइंग द सॉन्ग एंड आई वाज शॉक्ड, आई फॉरगॉट लिरिक्स। मैं जब पहली बार गाना देखा वीडियो, मैं अपने लिरिक्स सब भूल गया। मैंने कहा शाहिद ने क्या डांस किया है, क्या कमाल और क्या आउटस्टैंडिंग कोरियोग्राफी है। एक गाना बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। अगर मैं चाहता हूं कि लोग कोरियोग्राफी पे भी ध्यान दें, अगर मैं चाहूं, बिकॉज ये प्रभु देवा सर की पिक्चर थी, तो प्रभु सर के साथ में बात करके हमको पता था कि वो किस तरीके से, at that time you should not try and steal the attention away. Having said that, Saadi Ke Paul Sa has already mukhda very heavy concept, very big concept, you know, कि हिंदुस्तान की औरतों का इतिहास है या उनका नसीब है या जो भी आप कहें, कि पति के साथ में विचार मेल खाते हो ना खाते हो, मन मिलता हो या ना मिलता हो, ससुराल में साथ सबके साथ में मैचिंग हो रहा है नहीं स्वभाव का, वो अलग बात है, मगर साड़ी का फॉल तो मैच होना ही चाहिए। ये उसके हाथ की बात है, ये उस औरत के हाथ में है, बाकी की चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये चीज उसके कंट्रोल में है। इसीलिए वो बोलता है कि साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया है। वो बहुत, यू एंड मी वी हैव मेट लाइक एज इफ साड़ी को करेक्ट फॉल मिल गया। ये अपने आप में एक अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हेवी कॉन्सेप्ट सॉन्ग है। हाँ, आपको शायद सुनने में मजा आए, हंसी आए, कॉमेडी लगे, आपको लगे रहे क्या है ऐसी ही फालतू की चीज है, मगर फालतू नहीं है। इट्स द ट्रूथ एट द एंड ऑफ द डे, इट इज द ट्रूथ ऑफ इंडियन women, and that's why women love this song the most, even though you know it's a very male skewed film, the entire film is very male skewed, but the song is loved by women the most, you know, Saadi Ke Paul Sa. So these kind of things happen. हाँ, like coming back to your question, it's very interesting question कि कभी लगता है कि ज्यादा करूं। I'll give you another example, and this I learned from the master of repetition, which is हिमेश रेशमिया। तो हिमेश भाई से बड़ा रिपीटेशन का मास्टर नहीं है, करेक्ट? बहुत सिंपल सी बात है ना, एक बार आजा जा 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 आजा, आजा आजा ही रिपीट होगा वहां पर, एक बार आजा दिल को लगा जा नहीं होगा, एक बार आजा आजा वैसा ही होगा, correct? So I was writing a song for Himesh, and the song was a beautiful song from the film called Kick, and the song is तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। So beautiful song. When I wrote the first मुखड़ा, I wrote तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, बेखुदी बेवजह आजकल क्यों है। तो जब मैं हिमेश भाई के पास लेके गया गाना, तो हिमेश भाई ने बोला नहीं 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 मयूर भाई, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रिपीटेशन। तो बेखुदी बेवजह की जरूरत ही नहीं है, अपने को रिपीट हैमर करने का। हैमर मतलब कि आदमी के दिमाग में लिरिक्स बैठ जाना चाहिए।
So you don't bring in concepts unnecessarily. हर लाइन में नया concept लाने की जरूरत नहीं है. Let people enjoy the song. Let people, and this I learned as I was going. So some of the songs, because of the repetition, they work because you're not burdening the audience. And it works, right? It Yeah. became so catchy. साड़ी के फॉल सा became so catchy कि हर इंसान, बच्चा जिसको साड़ी के फॉल के बारे में पता भी नहीं है, उसकी जबान पे भी रह गया. And it's very fascinating to me. I now want to come to a song which is lyrically pretty heavy, which has some deep lyrics, which is Chunar from ABCD2, which I'm a huge fan of. जो सुन के there's one line which says जब जब मुझ पे है उठा सवाल, मैं तेरी चुनरिया लहराई. I think that line says talks about a lot more things than most other songs about the mother. But माँ के ऊपर इतने गाने लिखे गए हैं, जब भी बोला जाता है कि माँ के बारे में गाना लिखना है, does that feel like अरे अभी नवा क्या बोलूं? Well, originally this song was not supposed to be in the film. ये situation ही नहीं थी. So when I was writing the screenplay, additional screenplay and dialogues of the film, when I thought कि यहाँ पे एक जगह है, इस screenplay में एक जगह है जहाँ पे फिल्म शुरू होती है एक बड़े गाने के साथ में, एंड इट्स वरुण धवन, इट्स नॉट नोबडी, ऐसे कोई आलतू फालतू हीरो नहीं है, अच्छा हीरो है, हार्ट थ्रॉब है, यंगस्टर्स को बहुत पसंद है. और वरुण ने इतना कमाल डांस किया, फिर पता चला उसने वो चोरी का स्टेप किया था, उसको लेके उसकी बड़ी छिछाले दर हुई, उसका बड़ा ये हुआ. मुझे लगा अगर उस इमोशन को थोड़ा और पंप अप किया जाए, तो टू पंप अप दैट इमोशन आई ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट के जो जज है वो बोलता है कि आज तुमने सिर्फ अपना नहीं, अपनी टीम वालों का नहीं, हमारे देश का नहीं, शो का नहीं, मगर शायद स्वर्ग में बैठी अपनी माँ का सर भी शर्म से झुका दिया है. एंड बिकॉज योर मदर वॉज अ ग्रेट डांसर, एंड वो पाँव में घुंघरू बांधे थे जब उनकी डेथ हुई एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट बिकम्स वेरी इमोशनल. अभी जब कोई सिचुएशन इतनी भारी, इतनी इमोशनल हो जाए, तो आप वहां से सीधा आगे नहीं बढ़ सकते. यू नीड सम टाइम टू डाइजेस्ट दैट सिचुएशन. आपको एक ऐसा सांस लेने का मौका मिलना चाहिए. आप देखिए हिंदी फिल्मों में दर्द भरे गीत जब भी आए हैं, जब हीरो की वाट लग जाती है, सब तरफ से वो फंस जाता है, परेशान होता है, एक गाना आता है. अब्रॉड लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा. जो हॉलीवुड म्यूजिकल्स होते हैं उनमें उन लोग को समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट कि आदमी दुखी है तो गाना क्यों गा रहा है भाई, लाइफ को आगे बढ़ा. मगर हमारे यहाँ वो नहीं है. वी वांट टू स्टे. हम लोग दुख को भी, वी नो हाउ टू हग पेन एंड हाउ टू मूव ऑन विद दैट, एंड वी नीड टाइम, वी नीड टू प्रोसेस इट, तो वहां जरूरी है. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओम शांति ओम के अंदर जावेद साहब का बहुत अच्छा गाना है वो, जहां पे उसको पता चलता है कि शांति प्रिया तो किसी और जग सुना सुना लागे. करेक्ट. तो वी नीड दैट ठहराव, वी नीड दैट लिटिल दिस थिंग. सो आई सेड यहाँ पे एक जगह बनती है. रेमो सर का ये कहना था कि मयूर बैक टू बैक हो जाएंगे गाने, 2 ही सीन के बाद पहले गाना गया, उसके 2 सीन के बाद में तुरंत गाना आ रहा है. तो आई सेड नहीं सर, लेकिन ये जरूरी है, हमको यहाँ पे एक गाना लगेगा. तो बोला ठीक है, गाने में क्या लिखेंगे, कि किस तरह का गाना होना चाहिए. तो सचिन जिगर का ऑलरेडी एक गाना था जो उनका थोड़ा गरबा टाइप जो होता है ना, जो गुजरात में नवरात्रि पे जो होता है, उस फ्लेवर का एक गाना था. और उसका लिरिक्स भी यही था कि उसका जो फर्स्ट लाइन था वो यही था कि माड़ी तारी चूंद लहड़ी लहरानी. तो इस टाइप का मतलब, तो दैट कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम देयर. दे ऑलरेडी हैड दैट कॉन्सेप्ट एंड आई लव्ड इट. बट आई सेड अच्छा, अब गाना बन रहा है माँ के आंचल के बारे में, मगर ये देवी माँ नहीं है. अभी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या हुआ है, माँ को देवी बना बना के पेडेस्टल पे रखा गया, और रियल माँ की कोई बात नहीं करता है. मदर एज ए रियल पर्सन जो घर में रहती है, आपके साथ में, आपका ध्यान रखते हैं. यार आपको ध्यान ही नहीं आपका बेड कोई बनाता है, आपको ध्यान ही नहीं आपका खाना टाइम पे आ जाता है, आपको पता ही नहीं कि आपकी किताबें कैसे सही लग जाती हैं अपने आप. वो कोई करता है और वो माँ है, तो पूरी दुनिया एक तरफ है और माँ का आंचल वो ढाल है जो आपके बीच में है. जब भी आपने ग्लास तोड़ा और बाप खड़ा हो गया या चाचा खड़े हो गए, किसने तोड़ा ये ग्लास, तो माँ आके छुपा लेती है अपने बेटे को अपने आंचल में, अरे छोड़िए जाने दीजिए, है ना. सो माँ का आंचल फॉर मी इज अ बिगर वेपन देन कैप्टन अमेरिका शील्ड. इट सेव्स यू फ्रॉम द होल यूनिवर्स. वो बहुत बड़ी चीज है. माँ के आंचल में इतनी शक्ति. माँ इज द बिगेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल. राइट, शी सेव्स यू फ्रॉम द यूनिवर्स. बच्चे के लिए एक तरफ मैं हूं और बाकी पूरा संसार जो मेरी बैंड बजाने पे तुला हुआ है, मुझे पनिश करने पे तुला हुआ है, मुझे उस पनिशमेंट से कौन बजाता है, माँ का आंचल. इसीलिए जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया है लहराई.
Right, it's a great line. It's a beautiful song with that line which touches my heart, and I'm sure like everybody who's heard that वो Of गाना course. सुन के everybody has a like bittersweet smile or tear depending on what mood they're in. But it's a great line. It's a great song. The last one that I'd want to get to before I want to ask a couple of questions about other things also. But the last song I want to get to is one that is the most interesting one in your entire discography according to me, which is Todishum. which मैं पूछना चाहता हूँ कि ये गाना आपने पहली बात तो हर एक लाइन लिखते वक्त क्या आपको ये रहा कि ये कोई अप्रूव करेगा? It's a crazy song. Whoever hasn't heard it needs to hear it to see that these are the most audacious lyrics in a while. It's amazing. What tell me the process of audition. Okay, so one fine day I got a call. अच्छा उसके पहले की स्टोरी ये है कि आई नो डेविड अंकल एंड आई नो रोहित वेरी वेल, रोहित धवन द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड वरुण ऑफ कोर्स आई नो बिकॉज ऑफ एबीपी. So, and Rohit is a very, very dear friend, and he's been trying for a long time that I should probably work with his dad on some film or with him on something. वो कभी बन जी नहीं पा रहा था because I was always busy with something or the other. तो एक दिन सडनली रोहित का फोन आया, बोला ब्रो ऐसा ऐसा मैं पिक्चर बना रहा हूँ और वरुण है और जॉन अब्राहम है और पिक्चर का मतलब और पिक्चर में गाने नहीं हैं एक्चुअली, 2-3 ही गाने हैं. इट्स नॉट अ म्यूजिकल फिल्म, इट्स एन एक्शन कॉमेडी. तो थोड़ा डिफिकल्ट है एंड दादा का ही म्यूजिक है, प्रीतम दा का ही म्यूजिक है, तो तू आ जा. तो प्रीतम वॉज वेरी बिजी. तो प्रीतम ने बोला मयूर तू जाके रोहित को मिल ले और अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड एवरीथिंग एंड देन यू राइट ना, तेरा एक वर्जन हो जाएगा फिर बैठते हैं अपन. आई सेड ओके. आई वेंट टू मीट रोहित. तो रोहित ने मुझे बताया कि ही सेड यू डोंट नीड टू नो द होल फिल्म, जस्ट अंडरस्टैंड ये फिल्म की बिगिनिंग में गाना है और गाने का बहुत सिंपल फंडा है कि आई डोंट नो वेदर इट वाज, हाँ इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म में ये गाना है और बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये दो जो हैं ये दो कॉप्स हैं और what if we make a funny song where these guys who are police they actually act out like moral police. Okay, now I'm not a big fan of moral policing. I don't like that concept at all. But see, film writing, song writing, scene writing is not about your personal beliefs. मैं पुनर्जन्म में नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने ओम शांति ओम लिखी है कि मेरी बिलीफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर की बिलीफ इंपॉर्टेंट है, जो फिल्म बना रहे हैं उनकी बिलीफ इंपॉर्टेंट. लेकिन जब मैं लिखता हूं तो बहुत बिलीफ के साथ लिखता हूं. तो अब मैं मॉरल पुलिसिंग में खुद बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन अब मुझसे कहा गया कि ये मॉरल पुलिसिंग पे गाना लिखना है, तो इमेजिन दो कैरेक्टर जो मॉरल पुलिसिंग करने को तैयार है. उसके मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूं. मैं आई रिमेंबर आई वॉज इन द स्टूडियो एंड आई वॉज आस्किंग एवरीबडी that what offends you. I was stopping people कि तुमको क्या बुरा लगता है. बोला ट्रैफिक जाम में फंसना बुरा लगता है, कोई ऐसा करता है तो बुरा लगता है, ऐसा करता है तो बुरा लगता है. और मैंने जब उसका पहला मुखड़ा लिखा कि यू नो whatever तो डिशुम, और मैं रोहित के पास में गया तो रोहित ने लिरिक्स पढ़ा एंड रोहित इज लाफिंग हा 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 हा. आई सेड व्हाई यू लाफिंग, तो कुछ खराब है क्या? ही सेड नहीं दादा ने सुना है लिरिक्स. मैंने बोला नहीं दादा ने तो नहीं सुना है. अरे बोले दादा को लिरिक्स सुनाओ. मैंने कहा ठीक है. प्रीतम आया, प्रीतम को मैंने लिरिक्स सुना एंड प्रीतम जस्ट गिव अ डर्टी लुक टू रोहित एंड ही जस्ट लाइक, so I said Rohit what the hell is happening, you know, will you tell me? And Rohit is laughing. Then Rohit told me कि Mayur, when I started shooting the film, before the shoot when I had just written the script and all, I went to Pritam da and I said दादा आपने देसी बॉयज का म्यूजिक किया था और मेरा नेक्स्ट फिल्म का म्यूजिक भी आपको करना है, मगर प्रॉब्लम ये कि पिक्चर म्यूजिकल नहीं है, सिर्फ 3 या 4 गाने, 3 गाने हैं, एक एंड क्रेडिट्स में डाल देंगे तो 4 ही गाने बन पाएंगे पिक्चर में और ऐसा है वैसा है. मैंने उनको स्टोरी सुनाया, बोला पिक्चर का नाम है डिशुम. दादा ने बोला मैं एक शर्त पे पिक्चर करूंगा, इस पिक्चर में तू मुझसे टाइटल सॉन्ग नहीं मांगेगा क्योंकि डिशुम इज नॉट अ म्यूजिकल वर्ड, उस वर्ड पे कोई गाना नहीं बन सकता. एंड दैट्स व्हाई रोहित इज लाफिंग यार तूने पहला गाना जो पहली चीज लिखी वही लिख दिया तो डिशुम. तो एंड प्रीतम वाज सो अपसेट विथ मी, ही वाज लाइक नहीं चेंज कर दे, डिशुम बहुत गंदा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड नहीं है. I said that doesn't matter, you know, you don't have to like the word, the song has to work, you know. And then finally between me and Rohit we loved it so much, the producers loved it because उनको गाने के हिसाब से टाइटल प्रमोट करने का मौका मिल गया, because you know अगर तो डिशुम नाम से गाना आ जाएगा, because पिक्चर की हवा नहीं बनी थी उतना, टाइटल लोगों को पता नहीं था पिक्चर का कि डिशुम नाम की पिक्चर आ रही है. So for them it became very important because they thought they will never have a title song. So I wrote this, so it became, David uncle was very happy, so everybody became very happy with the lyrics और हमने जबरदस्ती प्रीतम से वो गाना रिकॉर्ड करवा लिया.
I don't know today. I don't know whether he likes it or not. It became a decent hit, and people loved the song, and we had a lot of love, especially YouTube comments and all. If you see that song, का अभी भी बहुत मतलब लोगों का प्यार है. It's crazy, but it is a crazy song. It's a song about Yeah, offense, like how everybody takes an offense. yeah, it's a hilarious song. But like you spoke about things that you not surely believe in. There's one line in the song which can be pretty divisive, which is I want to get to that because I think without getting too much into details of a very political statement, but there is one line which says "Jan Gan पे ना खड़ा हुआ तो So डिशुम." Dishum. So राइट सो वो लिखते वक्त या दिमाग में आया कि people might think that this is a hyper nationalistic jingoistic line या फिर it was these people ये वो पॉइंट पे क्या सोचा था? पहली बात वो मेरा थॉट नहीं है, वो कैरेक्टर का थॉट है. वो जो कैरेक्टर है वो ये जी बिलीव करते हैं. सो दैट्स तो इसमें यू कांट थिंक दैट जो भी मैंने लिखा है वो किसी फिल्म के लिए किसी कोई कैरेक्टर जी उसको गा रहा है, वो मेरी बिलीफ नहीं है. वो सिचुएशन के लिए जी जरूरी है, उस कैरेक्टर को समझने के लिए जरूरी है. नाउ कमिंग बैक जी टू माय पर्सनल बिलीफ, लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद स्टैंडिंग अप फॉर नेशनल एंथम क्योंकि जबरदस्ती खड़ा होना पड़ता है. नाउ आई अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमन, इफ देयर इज अ व्हीलचेयर बाउंड पर्सन, इफ समबडी इज अनवेल एंड इफ समबडी डजंट वांट टू गेट अप. ठीक है, देशभक्ति जबरदस्ती किसी पे थोपी नहीं जा सकती. बट मैं बचपन से मेरी पर्सनल जो मतलब परवरिश रही है वो ऐसी रही कि दूर भी कहीं पे कहीं जनगण मन बजते तुरंत खड़ा होने की आदत है. बिल्कुल तो वो बचपन बिल्कुल से सही इनग्रेन्ड है. और ये कोई पेट्रियटिज्म हमको सिखाया नहीं गया या जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने बचपन से डंडा लेके बोला नहीं. बट वी यूज्ड टू बी सो हैप्पी बिकॉज स्कूल में 15 अगस्त को हम लोग नेशनल सॉन्ग कंपटीशन करते थे. मैं जीतता भी था हर साल. 26 जनवरी को फंक्शन होते थे, उस दिन छुट्टी होती थी, अच्छा खाने को मिलता था, बड़ा मजा आता था. मेरी माँ का बर्थडे 26 जनवरी को है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज डबल सेलिब्रेशन इन माई हाउस. मैं तो लिटरली बोलता हूँ कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ बिकॉज यू नो माई मॉम इज 26 जनवरी इज हर्स बर्थडे. सो मुझे पर्सनली कभी ये समझ में नहीं आया कि अगर 2 मिनट अगर आप सशक्त हैं, हेल्दी हैं और आप इस देश में रह रहे हैं आराम से, and it's a wonderful democracy, it's a secular country, and you should not have a problem getting up on Janagana Mana. बिल्कुल I mean, I have still not understood the reason why people don't want to get up on Janagana Mana. So कहीं ना कहीं मुझे उस लाइन में कुछ गलत नहीं लगता. क्या बोल रहा है वो यार, नहीं गलत जनगण. हाँ, मगर ये गलत बात है कि कोई खड़ा नहीं हो तो जबरदस्ती उसको तोड़ डिशुम करके मार दो. दैट आई डोंट एंडोर्स, दैट्स अ जी कैरेक्टर, बिल्कुल वो मेरी भावना नहीं है. बट मोटा मोटा आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल विल फील लाइक दैट. यार तुम क्यों नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होगे? राइट 100%. It is just कि maybe, and I'm saying that even when the song came out 4 साल पहले, तभी the atmosphere wasn't even such. तो फिर I'm not saying कि आपने jingoistic या कुछ सोच के लिखा है. मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसका वो जो टोड इशू में like you said वो कैरेक्टर की सोच है, उसको एक गलत तरीके में या फिर एक कंट्रोवर्शियल तरीके में लिया जा सकता था. बट या like you said it's always what the character ये बहुत thinks. cat. Also, I mean, the thing is that people give too much importance to the film. अभी हम बात कर ही रहे तो आजकल तो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, बॉलीवुड ये बॉलीवुड वो, बॉलीवुड का सत्यानाश कर दो बॉलीवुड ने, जैसे बॉलीवुड ही सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है और अगर बॉलीवुड को ठीक कर दिया तो पूरा देश सुधर जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है. I have a personal theory about it. My theory is that of course films influence us, मगर films का influence बहुत, it's like a weak nuclear force. If you're a science student, you'll understand what I'm talking about. There are strong nuclear forces, there are strong forces like gravitational force and stuff like that, and there are weak nuclear forces जो ज्यादा बड़ा change नहीं कर सकते. आप एक पिक्चर देख के अपने आप में क्या बदलाव ले आओगे? आप हेयर कट चेंज कर लोगे, कपड़े अलग पहनने लगोगे, आपकी कोर बिलीफ, आपकी मोरालिटी फिल्म देख के नहीं बदल सकती है. ये बहुत बड़ा चेंज है. ये films are too weak to be able to do that. So I don't think we should get into these ridiculous debates about oh film देखने से आदमी ने ये कर दिया वो कर दिया. I don't think that film देख के लोग. Also films are a mirror to the society. एक आईना है कि आपके समाज में ये हो रहा है. उस वक्त तो डिशुम बोलने वाले लोग थे, इसीलिए वो गाना लिखा गया. You know, ये इस दौर की सच्चाई है. ये इस दौर के लोग हैं जो, कुछ लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं. ये वो कैरेक्टर्स हैं, उनकी सच्चाई. तो क्या एज एन आर्टिस्ट मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, कान बंद कर लूं कि नहीं मैं इस चीज को इग्नोर ही कर दूंगा और मैं इतिहास में दर्ज ही नहीं करूंगा, आर्ट के इतिहास में ये चीज दर्ज ही नहीं होगी? वो तो गलत बात है ना. तो आई शुड हैव द फ्रीडम टू राइट. आई एम नॉट राइटिंग समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग इन द सोसाइटी. आई एम राइटिंग समथिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग. उतना तो हक होना चाहिए एक आर्टिस्ट को.
जी बिल्कुल, I won't deny that, but I have a counter argument. I do not mean to discredit anything that you said, but there is a counter argument के 90s में and even in 80s काफी सारे sexist गाने आया करते थे which were written. तो उसके लिए भी बोल सकते हैं कि क्योंकि ये सब हो रहा था, लेकिन उसके अंदर आप खुद भी at some point agree करोगे कि काफी ज्यादा sexism को glorify किया गया था. तो उसके डू यू थिंक दैट इज आल्सो ओके, क्योंकि वो भी सोसाइटी के अंदर है? बिल्कुल है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सिर्फ 90s या 80s या 60s या 40s की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जिस वक्त गालिब शेर लिखा करते थे, उनके गालिब के पहले एक उर्दू शायरी का दौर आया जो कि बहुत घटिया दौर माना जाता है, जिसमें सिर्फ फीमेल ब्यूटी के बारे में लिखा जाता था, जिसमें सिर्फ ऑलमोस्ट सेमी पोर्नोग्राफिक काइंड ऑफ इमेजरी वाज यूज्ड एंड बॉडी पार्ट्स वर एग्जैजरेटेड। इनफैक्ट मैं तो कई बार मेरे कुछ प्रीडेसेसर या मेरे कुछ कंटेम्प्रेरी भी लिरिसिस्ट हैं जो आई डोंट कॉल देम लिरिसिस्ट, मैं बोलता हूँ ये बॉडी पार्ट्स की दुकान है, क्योंकि वो लोग दिल जिगर गुर्दा कलेजी करते रहते हैं। सो आई डोंट आई डोंट एंडोर्स दैट काइंड ऑफ राइटिंग। आई डोंट थिंक आई हैव एवर रिटन अ सॉन्ग जहाँ पे मैं आंखों की या फलाना डिकड़ा उस टाइप का मैं लिखता नहीं, बिकॉज आई डोंट, माई राइटिंग इज वेरी सिंपल यार। जैसा हम लोग बात करते हैं मैं वैसा लिखता हूँ, करेक्ट। हम लोग वैसी बात नहीं करते तो मैं वैसा नहीं लिख सकता। अगर कोई मेरे को ऐसा कैरेक्टर दे जो कि शायर है और 90s का है और इस टाइप की बातें करता है तो शायद मैं वैसा लिखूं भी, बट आई फील इट वेरी वियर्ड। एवरी वक्त के साथ में सोसाइटी बदल सकती है। हमारे पे जैसे सती प्रथा इंडिया में हुआ करती थी, मगर एक राजा राममोहन रॉय आए और उन्होंने चेंज कर दिया। आज के दौर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कास्टिज्म इज अ ह्यूज प्रॉब्लम and we are completely taking it out from our films and from our writing. आज मैं एक ही किसी कास्ट का जिक्र नहीं कर सकता किसी गाने में या किसी सीन के अंदर। you just can't do it now, and I think it's good. I think you should not. I think we should move beyond these shackles of caste system, these shackles of age old things जो कि पुरानी हो चुकी हैं, जो कि जिसकी जगह नहीं है इन 21st century society। इन चीजों की, इन कॉन्सेप्ट्स की जगह नहीं है। It's horrible and we should just avoid it. तो सेक्सिज्म की भी जगह नहीं है बिल्कुल, and we should avoid it. अगर ऑडियंस सुनना बंद कर देगा तो लोग लिखना बंद कर देंगे। It's as simple as that. जी, of course, nobody can deny that it is a give and take relationship always between the makers and the audience. But I also lastly I want to get to the recent work that you've done, which is also writing for the Hindi dub of Yes. the biggest of films, which is a lot of these films in the Hindi version have done more business than the biggest of Hindi films, right? And you have written almost all the big films जो पिछले 2-3 साल में आई है, सारी की सारी के हिंदी डायलॉग्स आप ही ने लिखे हैं। So उसके वो एक कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to make the biggest film of the world be accessible to the entire country? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। So how is that done? आई एंजॉयड। 2016 में मेरा ये सफर शुरू हुआ, उसके पहले मैंने कभी लिखे नहीं थे। जंगल बुक वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई रोट इन हिंदी, एंड आई वुड से दैट आई रोट बिकॉज इट्स रीराइटिंग, इट्स नॉट ट्रांसलेशन। इट्स आई ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आई अडैप्ट द फिल्म। तो अडैप्टेशन इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग दैट, 2016 से लेके अब तक मैं 16 फिल्म डिज्नी के लिए कर चुका हूँ, डिज्नी पिक्सार मार्वल की मिला के। अब 16वीं पिक्चर मेरी अभी चल रही है, विच आई एम राइटिंग राइट नाउ। So it's been a great journey. I've learned a lot, and of course, it's world-class writing. What you are adapting or what you are working on, the scripts they are world-class. They're brilliant storytellers who are telling these stories. और क्यों ना हमारे ऑडियंस को ये स्टोरीज उस हालत में उस तरीके से मिले कि उनको समझ में आए और उनको अपनी लगे। अगर आप जंगल बुक का हिंदी वर्जन देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंग्लिश पिक्चर है, वो बिल्कुल हिंदी पिक्चर है। या लायन किंग का हिंदी वर्जन अगर आप देख लें तो इतना खूबसूरत वर्जन, उसके गाने हों या उसकी डायलॉग्स हों, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी फॉरेन फिल्म को देख रहे हैं, वो आपको अपनी लगेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि मैं मेरे ऑडियंस को जानता हूं, मैं मेरे ऑडियंस के लिए वफादार हूं, मैं ऐसी चीज लिखूं कि उनको मजा आए, दे शुड एंजॉय। इतना महंगा हॉलीवुड की फिल्में इतनी महंगी होती हैं, इतना महंगा टिकट लेके हम लोग जाते हैं देखने के लिए, और फिर थोड़ी समझ में आए और ना आए मगर हम प्रिटेंड करें कि हमें समझ में आ गई ताकि हम भी कूल बने रहे। नहीं भाई, हमें समझ में आए, हम उसको एंजॉय करें, वो जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग इट। या
and it's great fun. It's been I have fans because of that. Like I had my first set of fans were from my work as a dialogue writer in Hindi movies. The people who are fans of Om Shanti Om, Happy New Year, ABCD, ABCD2, whatever, whatever. The second set of fans I got was because of the lyric work, because of people who love Biggie Biggie and Teri Or and Jaane Kya Chahe Man Baura and Mai Teri Chuna. Like they're fans of these songs. And the third set of fans that I have, they are now Marvel fans and Avengers K fans and Lion Disney K fans, Lion King K fans. And they are also coming into my family, my family of friends who really care about me and care about my work. And I'm absolutely blessed to have that. जी मैंने जंगल बुक और लायन किंग दोनों वर्जन्स में देखी है, इंग्लिश हाँ. और हिंदी, एंड इट फेल्ट लाइक टू डिफरेंट फिल्म्स, एंड ऑल क्रेडिट टू यू, इट इज अमेजिंग। वो हिंदी दोनों is के better, अंदर के, isn't it? हाँ, दिल पे हाथ रख के बोलो, especially हिंदी इज बेटर. especially जंगल बुक 100%। मैं हिंदी डायलॉग्स वर अ लॉट फनियर, Yeah. राइट? उसके अंदर आई थिंक जंगल बुक के हिंदी वर्जन के अंदर कॉमेडी बहुत ज्यादा ऐड कर दी गई थी, which I really enjoyed. And Yeah. especially when I went with my younger brother for both the versions, वो बहुत ज्यादा हंसा है। Yeah, वो yeah. दोनों भी वर्जन में बहुत ज्यादा हंसा है। एंड आई हैव वॉच्ड लायन किंग बोथ द वर्जन्स विद हिम, एंड इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा कंपैरेटिवली It's a dark is film. more, Lion King is Hamlet. So Lion King is Hamlet, and Hamlet is dark. It's not a happy story, you know. So it's right. difficult to make it enjoyable and make it fun. And Disney has done a great job in bringing that story in a way that everybody can enjoy. But in the Hindi version, we have gone even further and made it less Correct. dark, made it Yeah, especially interesting. with the Shreyas Talpade dialogue and all of that, it is Yeah, like me and my brother found myself laughing all throughout, and it's yeah. amazing. Full credit to you for that. And finally, what's next? What's in the pipeline? Uh, so I'm writing a film for Disney Pixar right now. It's called Soul, 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 Atma. coming out on Christmas this I year. think it's coming out in December. Yeah. So that's Yes. right now happening. And apart from that, I have a small company now, which is called Story Circus, and we do a lot of transcreation jobs. So on Netflix, we have Orange is the New Black, all Hindi versions, all 90 episodes. वो हमारे हैं. And I have a team of people who are very very dedicated, a fantastic team of writers who work with me to do these things. अभी Money Heist का हम लोग कर रहे हैं, वो भी थोड़े टाइम में हिंदी वर्जन अवेलेबल हो जाएगा. उसके अलावा भी मतलब यू हैव टू गो टू माय वेबसाइट टू चेक इट आउट, www.mayurpuri.com, and then there's a timeline on that and you'll see all the posters and you see how much work. It's difficult for me also to keep a track. इतना ज्यादा काम हो रहा है कि मैं खुद भी ट्रैक नहीं रख पाता. Perfect. I'll do that, and I'll be checking out all the stuff that you've that is coming up, and I'll be checking it all out. Thank you so much for speaking with us. And like you said, आपके 3-time fan बने, and I'm a fan of all three. I'm a huge fan of the dialogue of Om Shanti Om. I'm a huge fan of all the Hindi dubbed versions of all these great films, and of course the lyrics that I spoke about. These are just my 5 most interesting ones, but I'm a huge fan of many others also, which I did name क्योंकि मुझे अलग-अलग choose करने थे, and that is why I spoke about Sure. it. Thank you so much. Thank you so much for having this conversation. I really had a great. Thank you. This was a pleasure. It was great. I liked having this kind of a simple conversation without too much of a hassle on head and all. And I really enjoyed talking to you. Thank you so much for calling me, and all the best to all your listeners and viewers. Thank you guys. Thank you for joining us, sending so many hearts on our way. Thank you. Okay, this video shall be available on the IGTV of Ministry of Films, so you all can watch it whenever. Okay, thank you, sir. Thanks a lot. Bye-bye.